جذبہ لے کر خود اپنی اور غیروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے میرے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنیں، جیسے آپ کو معلوم ہے عنوان میرا نوجوانوں کے بارے میں ہے۔ میں نے اسی کی مناسبت سے سورہ الروم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی خلقکم من ضعف، جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اس اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں کمزور کرے گا، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، اس کی مرضی ہے وہ جیسا چاہے پیدا کرے، وہو العلیم، وہ علم رکھنے والا ہے، القدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز دوستوں، سمجھدار میرے ساتھیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں 3 مرحلے اللہ عز و جل نے بیان کیے، 3 مرحلے، سٹیجز۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے لگتے ہیں انسان کے بچے کو پلٹنے میں۔ اتنا کمزور ہوتا ہے، اپنی کوئی چیز خود کر ہی نہیں سکتا ہو، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک لفظ ذکر کرتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم اسے طاقتور بناتے ہیں۔ یہ جوانی کی عمر ہے، اللہ نے اس جوانی کی عمر کو طاقت سے تعبیر کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اگر ہمیں پیدا کرنے والا خالق ہماری عمر کے ایک حصے کو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ طاقت والا ہے، تو حقیقت میں مانیے یہ حصہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ رہے گا نہیں آپ کے پاس زیادہ دیر تک، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، ہر جوان انسان کو بڑھاپے کی طرف جانا ہے، پھر واپس کمزوریوں کی طرف تم چلے جاؤ گے۔ جوانی کا جو مرحلہ ہے، کچھ کرنے کا مرحلہ، اللہ نے طاقت سے تعبیر کیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، کئی بار آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، آج میرے موضوع کے تعلق سے اس حدیث کو ایک بار سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، حدیث الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے حدیث، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا ہے کہ آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس سے اس حدیث میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ سنا نہیں سنا؟ بولو بھائی جی، 2 وے چلیں گے، 1 وے نہیں جی۔ سنا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا جی۔ 5 چیزوں کا سوال کیا، میں 5 نہیں کہوں گا، شروع کی 2 چیزیں، صرف 2 باتیں۔ پہلا سوال اللہ کا کیا ہے؟ عن عمرہ، عمر تو نے کہاں گزاری؟ سوال کیا ہے؟ بولو نا، کیا سوال ہے؟ عمر تو نے کہاں گزاری؟ اور اس کا دوسرا سوال کیا ہے قیامت کے روز؟ وعن شبابہ، تو نے جوانی کہاں گزاری؟ سب عقل مند بیٹھے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے جو عقل سے خالی ہے۔ جی ہاں، کیا عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ سوال کا جواب دیجئے، عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ اگر جوانی عمر میں داخل ہے تو اس کا الگ سوال کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے پاس اس عمر کی اہمیت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس لیے ساری عمر کا سوال الگ سے کیا جائے گا اور جوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا۔ اس لیے میری جوانی میں جیسے چاہوں گزار لوں، یہاں تو تم سینہ تان کے بزرگوں کو آنکھ دکھا سکتے ہو، اپنے پیدا کرنے والے والدین کو تم آنکھ دکھا سکتے ہو، اپنے پڑھانے والے اساتذہ کو تم آنکھ دکھا سکتے ہو، مگر اللہ کے پاس
کھڑے ہوकर تمہیں جواب دینا پڑے گا یہ جوانی تُونے گزاری کہاں. اس کی تیاری کیجئے. کیا کیجئے؟ تیاری کیجئے. اللہ کے لیے تیاری کیجئے. یہ دو باتیں، ایک قرآن کی آیت کریمہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن کی آیت اور نبی کی اس حدیث کی روشنی میں ایک بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، اللہ کے پاس ہماری جوانی کی بڑی قدر ہے. اللہ اکبر. کیا معلوم ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو. حدیث کے راوی معاذ ابن جبل ہیں. کون؟ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. نام آ رہا ہے اس لیے تمہارے سامنے بول دوں میں. صحیح بخاری، اکثر آج کل نمبر ہم لوگ نہیں بولتے مگر اس حدیث کا میں نمبر بول رہا ہوں. شاید ریدرک میں بھی میں نے یہ حدیث نمبر سے بولی تھی. 4990 پر 9. کیا نمبر؟ 4999. 4990 پر 9. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خذ القرآن من 4. 1,50,000 صحابہ میں 4 صحابہ ایسے ہیں. سبحان اللہ. جوانوں، اگر کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے نا، ان کو بناؤ رول ماڈل. ایسے لوگ جو رات نشے میں گزارتے ہیں، ہر دن الگ الگ لڑکی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جن کا پیشہ زنا ہے، جن کا ہر فلم زنا کے اوپر مبنی ہوتا ہے، جو شراب کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ڈی پی اپنے فون میں مت رکھو میرے بھائی. مت رکھو. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مت رکھو. جو شراب کے دھنی ہیں، زنا میں لت پت ہیں، ساری زندگی حرام کماتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو مت بناؤ. بنانا ہے یہ صحابہ کو اپنا ہیرو بناؤ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 1,50,000 صحابہ میں اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے، نبی کہتے 4 صحابہ ہیں، سارے صحابہ میں سب سے اچھا قرآن ان کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ ہمارے وی آئی پی لوگ ہیں. کیا ہیں یہ وی آئی پی ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اور وہ 4 میں ایک نام ہے معاذ ابن جبل کا. وہ 4 میں ایک نام ہے معاذ ابن جبل کا. تمہارے سینے میں تڑپ ہونی چاہیے باقی 3 کون ہیں وہ معلوم کرنے کی. تمہارے سینے میں وہ تڑپ ہو باقی اور 3 صحابہ کون ہیں اسے معلوم کریں انشاءاللہ. میں تو 10 بار بولا، پرسوں بھی 1-1.5 مہینے میں آیا تھا. میں ریدرک میں بھی شاید یہ بول کے گیا ہوں. معلوم کرو. ایک صحابی معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. وہ راوی حدیث ہیں. کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے الفاظ کیسے ہیں دیکھو، اغتنم 5 قبل 5. نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ. درود پڑھو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. اغتنم 5 قبل 5. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ غنیمت سمجھو، اسے ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو. یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ غنیمت سمجھو. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کو غنیمت سمجھو. سمجھیں گے؟ سمجھیں گے. پہلا لفظ کیا ہے نبی کا؟ پہلا لفظ اللہ کے رسول کا حدیث میں سن لیجئے، شبابک قبل حرمک. اللہ اکبر. تیری جوانی کو غنیمت سمجھ تیرے بڑھاپے سے پہلے. آج تجھے چیئر کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. تیرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، تیرے پیٹھ میں درد نہیں ہے، تو کسی طرح سے مریض نہیں ہے، تو آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. اس عمر کو تو اللہ کی عبادت میں گزار. کل جب ساری چیزیں اچانک ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں بلڈ کینسر ہے، اچانک ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں 4th اسٹیج میں کینسر ہے، اب اللہ کی طرف آنا چاہو، اب نمازیں پڑھنا چاہو، وہ مقام نہیں رہے گا جو اب کرو گے میرے بھائی. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. کب غنیمت؟ بڑھاپا پہلے. 5 چیزیں نا میرا عنوان پہلے نمبر سے ہے، باقی 4 میں نہیں بول رہا ہوں. میں انشاءاللہ میں نے اپنے اندر یہ طے کیا ہے انشاءاللہ 8:30 بجے میں میری تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ باقی آدھا گھنٹہ میں چاہتا ہوں کہ صدر مجلس کو دوں. 9 بجے شاید یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچے. پھر تمہاری بریانی بھی ہے. جی میں کیوں تمہاری بریانی کے بیچ میں آ جاؤں؟ پھر اس کے بعد آپ گھروں کو بھی جانا ہے. پتہ نہیں کون کون کہاں سے اللہ کا بندہ یہاں آیا ہوا ہے. اس لیے مختصر چیز ہوگی، اب ذہن میں انشاءاللہ لے کر جائیں.
अल्लाह के पास इस उम्र की अहमियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस उम्र की अहमियत है। और कुरान मजीद में सुभान अल्लाह मेरे भाई, अक्सर याद रखो, ये कितनी बड़ी बात है। देखो, अक्सर नबियों की बात मानने वाले, नबियों पर ईमान लाने वाले, नबियों के दोस्त, नबियों को साथ देने वाले नौजवान रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन कौन? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुरान मजीद की एक आयत करीमा है, सूरह अल कहफ के अंदर यह आयत मौजूद है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने अस्हाबे कहफ के बारे में कहा, ये कुछ नौजवान थे, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लेकर के आए और अल्लाह ने इनको हिदायत में और मजीद इजाफा कर दिया। सुभान अल्लाह। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये मैंने नोट किया, ये आप इस मजलिस से लेकर जाना इंशाअल्लाह। ले जाएंगे, ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं रहमहुल्लाह, इस आयत की शरह में अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं सुभान अल्लाह, वहुम अश्शबाब, नबियों पर ईमान लाने वाले वो नौजवान थे, वहुम अक़बलु लिल हक़, वो ज्यादा हक को कबूल करने वाले, वो अहदा लिस्सबील, सीधे रास्ते पे चलने वाले, मिनश्शुयूख, बड़े लोगों से ज्यादा। वलिहादा, इसीलिए अक्सरुल मुस्तजीबीन लिल्लाहि ताला वली रसूलिही शबाबन, अक्सर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले पूरी तारीख में ये नौजवान थे। सुभान अल्लाह। कौन थे? तुम्हारी बड़ी अहमियत है मेरे भाई, तुम नबियों पर ईमान लाने वालों में पहले हो। तुम्हारी जवानी को नबी कहते गनीमत समझो। अल्लाह तुम्हारी जवानी को ताकत की उम्र से अल्लाह ताबीर करता है। रोज़ क़ियामत तुम्हारी जवानी का अलग से सवाल किया जाएगा। एक हदीस में पढ़ा, अबू ज़ैद ज़मीर साहब उनके घर में बैठकर, शेख ने भी यह हदीस एक दर्स में कही थी, मेरी बहस हो गई शेख से। शेख ने इतना सफ़ा उस हदीस की तहकीक मुझे भेज दी। मैंने शेख से कहा, शेख ये हदीस आपने फलां दर्स में बयान की है, मैंने पढ़ा ये हदीस ज़ईफ है। शेख ने वो पूरी हदीस की तखरीज इतनी बयान की, हाँ फलां ने ज़ईफ कहा, कवी कहा, आखिर में वो हदीस सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा के अंदर मौजूद है, हदीस सही है। अल्लाहु अकबर। आपको ताज्जुब होगा, हदीस क्या है जानते हैं? इन्नल्लाह ला यअजब मिनश्शाबि लैसत लहु सबवा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को ताज्जुब होता है, अल्लाह ताज्जुब करता है उस नौजवान पर, अल्लाह ताज्जुब करता है उस नौजवान पर जिसके अंदर सबवा नहीं होता। क्या नहीं होता? हदीस में क्या लफ्ज है? हदीस में क्या लफ्ज है? सबवा नहीं होता। ला सबवता लहू लैसत लहू सबवा, दोनों हदीस के लफ्ज हैं। अल्लाह को ताज्जुब होता है उस इंसान पर, उस नौजवान पर अल्लाह ताज्जुब करता है जिसमें सबवा नहीं होता। सुभान अल्लाह। क्या माना है सबवा का? यह हदीस सुने हैं आप लोग? यह हदीस सुने हैं? इधर से आवाज आ रही है? नहीं, तो फिर इधर से तो बिलाशुबा नहीं है, इधर से तो बिलाशुबा। सबवा का माना अरबी जबान में जब मैंने देखा, अलमैलु इलल हवा, अलमैलु इलल हवा, ऐसा नौजवान नौजवानी में अगर उसके अंदर कंट्रोल है, वो गुनाहों की तरफ झुकता नहीं है, गुनाह सामने आते हैं अपने आप को कंट्रोल में रखता है, वो नौजवान पर अल्लाह ताज्जुब करता है। अल्लाहु अकबर। तुम्हारी जवानी अगर सही हो जाए मेरे भाई, तुम्हारी जवानी अगर सही कामों में लग जाए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जवानी पर अल्लाह ताज्जुब करेगा। ऐसे जवान बनो मेरे भाई, ऐसे जवान बनो, अल्लाह तुम्हारी जवानी पर ताज्जुब करे मेरे भाइयों। सुभान अल्लाह। मिसालों के लिए बेशुमार मिसालें, बेशुमार। मैंने 20-25 जगह पर अभी रिसेंट के मैंने मिसालें दी है, मैं नहीं देना चाहता। एक नौजवान मरा पड़ा हुआ है, शहीद होकर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। उहद की जंग है। कौन सी? उहद की जंग है। मैंने वो हदीस ऐसे ही नोट कर ली जो नबी ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उहद की जंग है। नौजवान का नाम आपके सामने मैं बताता हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा नौजवान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्ल को अल्लाह वैसा बनाए। मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं, जी हाँ, मैंने अपना टाइम भी बता दिया है। जी कितना बाकी रह गया मेरा टाइम? ले दे के 20 मिनट के करीब रह गया है। सब्र से बैठ जाओ,
सब्र से बैठ जाओ इंशाअल्लाह। क्रिकेट मैच देखते हो बेशर्म बनकर 6-6 घंटे, और अगर तुम्हारी टीम हार गई तो घर में मैयत की तरह रोते हो। कैसा रोते हो? ऐसा रोते हो गोया कि घर में तुम्हारे घर में मैयत हो गई है। अगर तुम जिस टीम को चाहते हो घंटे घंटे बैठते हो, यहां नबी की हदीसें हैं, कुरान की आयतें हैं, और तुम्हें बैठने में आगे पीछे हो रहा है। ताज्जुब की बात है। सहाबा बैठते थे, हदीस में आता है गोया कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, हलते भी नहीं थे सहाबा। आज इतना अहम मसला है, ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे नौजवानों में इतने गुनाह पाए जाते हैं, उनकी अहमियत पर बात हो रही है, फिर तो रोते भी तुम ही लोग हो। बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, बच्चियां मान नहीं रहे हैं। सुभान अल्लाह, माहौल खराब हो रहा है। अगर खराब हो रहा है, जिम्मेदार तुम लोग हो। बैठो ऐसी मजलिसों में, बच्चों को लेकर आओ ऐसी मजलिसों में। अल्लाह चाहा तो सुधारेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहा तो सुधारेगा इंशाअल्लाह। किसी आलिम की तकरीर में वो दम नहीं है, किसी मौलवी की तकरीर में वो दम नहीं है जो अल्लाह के इस घर में अल्लाह ने रखा है। यहां अगर बच्चे को लेकर आओगे ना, नमाज का पाबंद बनाओगे, कुरान ये कहता है नमाज अगर बच्चा जमात से पढ़ता है उसमें वो ताकत है, बच्चे से गुनाह हट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हो जाएगा? गुनाह हटेंगे। सुधारना चाहते हो ना बच्चों को, नेक बनाना चाहते हो बच्चों को, मैं तो हमेशा ये कहता हूं मस्जिद से बच्चों को जोड़ के रखो। पहले दुनिया बनेगी, बाद में आखिरत बनेगी। पहले दुनिया, सुभान अल्लाह, बाद में आखिरत। मैंने अभी करीब में मिसाल दी है, 2 बच्चे मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ते, इशराक तक बैठते, इशराक के बाद मस्जिद में ऊपर जाते, जाकर अपनी तालीम को पढ़ते थे। नीट के एग्जाम में माशाअल्लाह ऐसे नंबर लेकर आए, दोनों बच्चों को फ्री सीट मिली है मेडिकल की। मस्जिद से जुड़ जाओ, अपने आप को जोड़ के रखो अल्लाह के लिए, मस्जिद के अतराफ अपने बच्चों को रखो। ये कुछ फजीलत है नौजवानों की जो अल्लाह ने अपनी किताब में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान फरमाई है। आज का जो नौजवान है वो कैसा है, ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा हम उस पर निगाह डालेंगे और इलाज क्या करना है, क्या करेंगे तो अल्लाह हमारे अंदर सुधार लाएगा। ये 2 बातों पर अपनी बात खत्म करेंगे। ठीक है? ठीक है? डर गए क्या भाई? इनको क्या करे तो भी गलती। भाई इतना डरा डरा को बोल रहा आदमी है जी। ठीक है, इंशाअल्लाह 2 ही बातें। आज का नौजवान क्या है, कैसा है, मैंने एक हदीस नोट की है उसके लिए। हदीस अल्लाह के रसूल की है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को बयान किया है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम ज़िराअन बिज़िरा शिबरन बिशिबर। ये नबी का लफ्ज है, एक हदीस का लफ्ज तुम्हें सिखा देता हूं। तुम जरूर इत्तिबा करोगे, फॉलो करोगे तुमसे पहले लोगों को। ज़िराअन बिज़िरा, ये ज़िरा होता है उंगली से लेकर अंगूठी तक, शिबर होता है, शिबर उंगली से लेकर अंगूठे तक, यानी जहां जहां वो गए तुम वैसे ही करोगे जैसे पहले लोगों ने किया। उनकी सारी गलतियों को तुम अपनाओगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है वो लोग? क्या वो यहूद व नसारा हैं? ये नौजवान, ये मुसलमान यहूद व नसारा के तरीके पे चलेगा? अल्लाह के रसूल का जवाब सुन लीजिए, फमन। नबी का जवाब क्या है? अगर यहूद व नसारा नहीं है तो कौन है? यह नौजवान। इसके सामने मुझे कभी कभी हंसी आती है। अल्लाह के नबी ने जो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके तरीके पे ये नौजवान चलेगा, ये अंग्रेजों के पीछे भागेगा, उनकी हर चीज इसे अच्छी लगेगी। सुभान अल्लाह, जो मेरे रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरी आंखों से देख रही है और मेरा ईमान मेरे नबी की जात पर बढ़ रहा है। सही है गलत है? सही है गलत है? जी, बच्चा भी गोरा पैदा होगा तो हमारी औरत क्या बोलती है, बोलो? अंग्रेज के जैसा है। कैसा बोलते? मिसाल क्या आती है? मैं तुम्हारे बीच का एक आदमी हूं, तुम्हारी ही जबान बोलूंगा, मैं लखनऊ और दिल्ली से नहीं आया हूं, ठीक है? बच्चा भी अगर गोरा पैदा हो गया, हमारे घर की औरत क्या बोलती है? सुभान अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है, मैंने एक औरत को भी नहीं सुना। खालिद इब्न वलीद की तरह है, मैंने एक औरत को भी नहीं सुना है।
मुसअब की तरह है। किसकी तरह? मुसअब बिन उमैर की तरह, जिनके बारे में नबी ने कहा इससे खूबसूरत नौजवान मैंने मक्के में नहीं देखा है। मैंने आज तक नहीं सुना किसी माँ को अगर उसका बेटा गोरा पैदा होता है तो ये नहीं कहती कि ये मुसअब की तरह है। सही है? हमारी मिसाल भी अंग्रेज है, हमारी मिसाल भी अंग्रेज है। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारे शादी का सबसे अच्छा जोड़ा सूट होता है। कौन सा सूट होता है? हमारे कपड़े, रहन सहन, हमारी सारी चीजों में हम उनके पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लफ्ज बरहक है मेरे भाई, बरहक है। आज भाग रहे हैं। याद रख लो अच्छी तरीके से, अच्छे से याद रखो। जी हाँ, हजरत उमर का ये कौल मेरे पूरे इस खिताब का खुलासा है। हर साल तकरीबन हज को जाते हजरत उमर, हर साल जाते। जब खलीफा बने थे एक जगह पर हज में मक्के की एक वादी में खड़े हो जाते और आंखों से आंसू बहाते, बहुत रोते, अपने आप से बोलते, अरे उमर तू जानता है कौन है? अरे उमर तू जानता है कौन है? तेरा बाप तेरे हाथ में ऊंट देकर भेजता, सुबह में जाओ चरा कर लाओ, और मुझे ऊंट चराना नहीं आता, शाम में आता तो मुझे कोड़े से मार पड़ते। ये वो उमर है जिसे ऊंट चराना नहीं आता था, आज अल्लाह ने खलीफा बनाया। अल्लाह अकबर। एक साथ हजरत उमर के जमाने में किसरा भी फतह हुआ, सुभान अल्लाह। कैसर और किसरा दोनों सुपर पावर को हजरत उमर ने हरा दिया। अल्लाह अकबर। दोनों फतह हुए। खड़े होकर हजरत उमर कहते, आज अल्लाह ने जो तुझे इज्जत दी है उमर, ये इज्जत तुझे तेरे दीन से मिली है। क्या बोलते? बोलो ना, जरा जोर से बोलो। हाँ जी हाँ, जोर से बोलो इसे, जो तेरे दीन से मिली है। और एक लफ्ज हजरत उमर का है, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम वो कौम हैं अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम से दी है। तलबना इज्जत बिदून इस्लाम अदल्लना अल्लाह। जब भी मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीजों में इज्जत को तलाश किया, अल्लाह ने जलील कर दिया। अल्लाह अकबर। क्या इज्जत है हमारी? इनका घर बड़ा है, बड़े इज्जतदार आदमी हैं, इज्जत घर में तलाश कर रहे हैं। इज्जत कपड़ों में तलाश। कितनी औरतें ऐसी हैं अच्छे कपड़े नहीं रहे तो शादी को जातीश नहीं है। नहीं? अरे है नहीं जी, जवाब दो मेरे सवाल का। कपड़े सही नहीं है, शौहर का तो बस गला दबाना बाकी रहता है जी। कितनी औरतें ऐसी हैं कपड़े सही नहीं तो शादियों में नहीं। इज्जत कपड़ों में, इज्जत बुरखे में, इज्जत जेवरात के अंदर, इज्जत हमारे बिल्डिंगों में, इज्जत हमारी दौलत में। कसम अल्लाह की, मुसलमान की इज्जत उसका दीन है। मुसलमान की इज्जत उसका दीन है। जब मुसलमान ये सोचेगा, और आज देखो हर कौम को अपना दीन पसंद है सिवाय मुसलमान के, सारी दुनिया के अंदर। मैं मिसाल दे देता हूं, सिख भाई है, पेठा पहनता है, प्राइम मिनिस्टर बना तो भी पहनता है। कैसा? प्राइम मिनिस्टर बना तो भी पहनता है, हाथ में कड़ा डालता है। 40 पर 8 डिग्री की गर्मी राजस्थान की, मगर सर से पेठा नहीं निकालता। उसे उसका दीन प्यारा है। अल्लाह अकबर। आज कौन सा दिन है? आज दिन कौन सा है? अरे बोलो जी। हफ्ता है। कल कौन सा है? हमारी छुट्टी कब होती है? सारी दुनिया को इन लोगों ने, इनका हॉलीडे इतवार है, इन्होंने सारी दुनिया को अपने मजहब के मुताबिक रखा है। अल्लाह अकबर। हमारा हॉलीडे कौन सा है? चाशुम्बा जुमेरात? जुम्मा है, साथ में है तुम्हें मेरे, माशाअल्लाह जी। हमारा सारी दुनिया को, उनको अपनी अपनी इस पर नाज है और हमें नाज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के लिए नबी की एक एक सुन्नत को इंशाअल्लाह जगाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह जगाने की कोशिश करो। कुछ बातें सुन लो इंशाअल्लाह। जो भी वक्त मेरा रह गया है 10-15 मिनट, उसके अंदर इंशाअल्लाह। पहली चीज, इस दुनिया में पैदा क्यों हुए हैं, अपने मकसद को पहचानो। अपने मकसद को पहचानो। हम आए क्यों हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ये मकसद पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हम क्यों यहाँ भेजे गए हैं। सारी दुनिया में इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हजरत नूह के लिए, बड़े बड़े नबियों के लिए हम गवाही देंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, दुनिया में आने का मकसद क्या है? पहला है पहचानो इंशाअल्लाह ताला। पहचानो कि जो बनना बनो, जो बनना बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना बनो, मगर अपने मकसद को पहचानो और अपने दीन को पहचानो। दीन पर रहकर बनो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह, मैं इस मौके पर मैं दुआ देता हूं मेरे वो सारे शागिर्दों को
जो इस मौके पर अमेरिका में अच्छे मौके अच्छी जगह पर है। एक ऐसा भी शागिर्द है अल्हम्दुलिल्लाह वाशिंगटन से, जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का, इस वक्त का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, क्या नाम है उसका, बाइडन, उसने एक लेटर डाला, लेटर लिखकर मेरे शागिर्द का शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि वो अमेरिका में एमडी किया है और सारे अमेरिका के अंदर उस साल वो सेकंड रैंक में आया। कोविड में उसने इतना अच्छा काम किया कि प्रेसिडेंट ने उसका शुक्रिया अदा किया। हम ऐसे नौजवानों पर सीना चौड़ा करके बोलते हैं, वो नमाजी भी है और साथ में एक बेहतरीन डॉक्टर भी है। मैं चाहता हूं आप जिधर जाओ अच्छे से अच्छा पढ़ो, सुभान अल्लाह, मगर दीन पर रहकर नमाज की पाबंदी करते हुए अपने दीन पर चलते हुए हमारे लिए शान की बात है। अपने मकसद को पहचानो इंशाअल्लाह। मैं जुमा का खुतबा दिया, खुतबे के बीच में बोला, फिर मिलने के लिए मैं खुद गया। एक बच्ची हमारी, नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं ना तो उनको कुछ बुरा भी लग जाएगा जी। 625 नंबर +2 में, कितने 625, उस बच्ची ने लिए 624। कितने नंबर? सीना हमारा चौड़ा होता है जी। 624, एक सब्जेक्ट में 99, बाकी सब में 100 100 100 100। मैं उससे मिलने उसके घर को गया, मैं खुद गया। उस बच्ची को उसका बाप सामने बिठाया। बच्ची ने कहा, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ती थी शेख, मैं कुरान हिफ्ज करना शुरू करी, मैं 17 पारे की हाफिजा हूं। जब मैं कुरान पढ़ना शुरू करी, अपने आप को मैंने दीन से जोड़ लिया, अल्लाह ने यह तालीम मेरे लिए आसान कर दी। अल्लाह अकबर। तुम जिधर जाना है जाओ, जो पढ़ना है पढ़ो, दुनिया में आगे बढ़ो, मगर दीन पर रहते हुए अपने मकसद को पहचानते हुए इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, एक अहम चीज है, जुमा का पूरा खुतबा मैं देके आ रहा हूं उस चीज के ऊपर। अल्लाह के लिए टाइम पास करने तुम्हें दुनिया में आकर नहीं है। क्या करने? कई को भी यहां खड़ी टाइम पास करने, क्रिकेट कई कुछ ही देख रहे हैं टाइम पास करने, गाने कई कुछ ही सुन रहे हैं टाइम पास करने, फिल्मा कई कुछ ही देख रहे हैं टाइम पास करने। तुम्हारी जिंदगी टाइम पास नहीं है, तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल, सुभान अल्लाह, हमारी जितनी बड़ी इबादतें हैं, हर इबादत को टाइम के साथ रखकर हमें दिन में 5 मरतबा टाइम की पाबंदी सिखाता है। अल्लाह के लिए टाइम की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। मालूम है हर आदमी क्या बोलेगा? कुरान की एक आयत है, जब भी मैं मक्के में मदीने में इस आयत को सुनता हूं, वहां के इमाम हिचकियां ले लेते हैं, रोते हैं इस आयत पर। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह बात की बात सुनो, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। मौत को सामने देखकर आदमी क्या बोलेगा? जानते हैं क्या बोलेगा आदमी? जब मौत सामने देखेगा आदमी क्या बोलेगा? मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल, आदमी कहेगा, रब्बी, अरे मेरे परवरदिगार, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह जरा टाइम दे दे, अल्लाह जरा वक्त दे दे, मरने से पहले अल्लाह से भीख मांगोगे टाइम, अब अल्लाह ने टाइम दिया है, उस टाइम को अल्लाह के रास्ते में लगाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। एक बात ज़हन में रख लो मेरे भाई, इसे लिख के लेके जाओ, जो वक्त को जाया करता है वक्त उसको जाया कर देता है। नहीं समझ में आई? नहीं आती भी नहीं समझ में बातें ये। जो वक्त को जाया करता है वक्त उसे जाया कर देता है। जो कौम वक्त को जाया करती है, आज जिस हालत में जो हम खड़े हैं, न हर दिन नया कानून, हर दिन नई परेशानी, ये पहलों की परेशानी है जो आज हमें आ रही है। 100 बादशाह अगर गुजरे हैं, 90 पर 5 खराब रहे हैं, 5 अच्छे रहे हैं। सारी रात वक्त जाया करते, मुर्गे को मुर्गे से लड़ाना, बकरे को बकरे से लड़ाना, सारी रात गाने सुनना, अशार सुनना, सुबह के बाद जाकर उसके सोना, ये हमारे लोगों ने गुजारा है। वक्त को ऐसे गुजारा, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आप ऐसा मत करो अल्लाह के लिए, वक्त को सही जगह पर लगाओ, खासकर मेरी नौजवान नस्ल। आखिर में जो वक्त मेरा रह गया है 5-6 मिनट, इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे तो हमारे अंदर सुधार आएगा, ये बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी इंशाअल्लाह अमल कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई, इल्म हासिल करो। क्या करना है? जी हाँ, दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म हासिल करो।
सबसे पहला काम है ये, इंशाअल्लाह मुझे तुम याद करोगे। कहां याद करोगे मालूम? खबर के अंदर। कहां याद करोगे? मुझे तुम याद करोगे इंशाअल्लाह कब्र के अंदर। खबर के अंदर एक सवाल होगा, आपसे 3 सवालात किए जाएंगे, मुझसे भी इंशाअल्लाह किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करो वो तीनों सवालात मेरे अल्लाह आसान करे। इनको छोड़ को कौन भी बोल रही नहीं सामने जी, इनके आसान हो गए तो इन्हों बच गए तो हमें कैसा भाई? अल्लाह से दुआ करो वो अल्लाह मेरे आसान करे। नहीं मौलवी साहब, इनको बड़ा हसद है जी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी आसान करे। ये क्या जोर से आ रहा है, देखो क्या सेल्फिश लोग हैं जी, तुम्हें खुद गर्ज आदमियां जी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके वो 3 सवालात आसान करे, और अल्लाह से आप दुआ कीजिए अल्लाह मेरे और हमारे खानदान के अल्लाह वो सवालात आसान करे जी। सुभान अल्लाह, जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आपको। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और नबी के बारे में एक सवाल होगा। सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। मेरे बच्चों, आपको मालूम है जवाब देने के बाद फरिश्ता एक चीज पूछेगा, मा इल्मुक, क्या पूछेगा? तेरा इल्म दुनिया में क्या था, क्या पढ़कर आया दुनिया से? अल्लाहु अकबर, किसी को नहीं छोड़ेगा फरिश्ता। तू पढ़ के आया क्या? एम.कॉम, बी.कॉम, एम.एससी, बी.एससी सब अपनी जगह पर है। जन्नती आदमी क्या जवाब देगा? आपको वो करना है इंशाअल्लाह। ऐसा आदमी जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसका जवाब क्या होगा? आपको करना है वो इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाहु फीक। सुभान अल्लाह। क़रअतु किताब अल्लाह व आमनतु बिही व सद्दक़तु। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की। इस तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उस माहौल में रहो, उलमा के साथ रहो। और इल्म की बात आ रही है, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, हमारे नौजवान जरा इंटरनेट में पढ़ लेते हैं। जी हाँ, कई लोगों ने कहा है फजीलतुल शेख गूगल साहब, क्या नाम यहाँ लिखना चाहिए, वो सबसे बड़े मुफ्ती गूगल, अकबर मुफ्ती गूगल, अकबर आलिम गूगल। गूगल में चक्कर लेते हैं जरा हाथों से, और यूट्यूब में बहुत सारे लोग आज आए हैं उल्टा सीधा बोलने वाले। तुम ना खुद इल्म नहीं है, ऐसे जाहिलों को सुनेंगे और अपना ईमान खराब कर लेंगे। उनको सुन के अपना ईमान खराब कर लेते हैं, रात दिन हम ना फोना करते रहते हैं। ये सवाल का जवाब दो मौलवी साहब, वो सवाल का जवाब दो मौलवी साहब। रात के 2 बजे एक जना फोन करता, 2 बजे। इन्हें तो सोता नहीं, हमना भी सोने देता नहीं। क्या है, किसी से बहस कर लेता चाय के दुकान में। अब बहस में इन्हें हार रहा है, कोसी की एक हदीस बोल डाला, कंफर्म करने मुझे फोन करता है 2 बजे रात को। सुभान अल्लाह। अगर आपको इल्म नहीं है, उन्हीं उलमा को सुनो जो किताब और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह से डर कर सही कुरान और हदीस के मुताबिक तुम्हारे सामने बयान करते हैं, उन्हीं को सुनो। इसलिए कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम जज नहीं कर पाओगे क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। इसलिए ये यूट्यूब के, गूगल के, इसमें जाकर अपने ईमान को खराब ना करो अल्लाह के लिए। इंशाअल्लाह हमारे अच्छे उलमा जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात आ रही है शेख, मैं इस मौके पर दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। हमारे एक बहुत अच्छे आलिम मक्के में थे, 15 दिन के अंदर इंतकाल हुआ है। 15 दिनों के अंदर कई किताबें लिखे। उज़ैर शम्स नाम है, क्या नाम? उज़ैर शम्स नाम है। अच्छे जय्यद उलमा में से एक थे, इंतकाल हो गए। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इंसान होने के नाते अगर उनसे गलतियां हुई हैं, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है जब मैं मरूंगा शायद कोई और मेरे लिए दुआ करेगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। हमारे अच्छे उलमा के लिए इल्म हासिल करो और इल्मी मजलिसों में रहो इंशाअल्लाह। ये पहली चीज है, पहली चीज है। दूसरी चीज, इसे गौर से सुनो, मरहले हैं सुधरने के। अगर उस मरहले में नहीं सुधरे तो फिर सुधरेंगे नहीं। आप लोग मिसाल देते नहीं, माशाल्लाह मेरे से अच्छा आप जानते हैं। एक दरख्त को शुरू में अगर मोड़ लिया जाए, झाड़ को, भाई दरख्त भी समझ में नहीं आया तो, एक झाड़ को शुरू में अगर वो टेढ़ा जा रहा है, अगर उसे सीधा किया जाए शुरू में होता नहीं होता। अगर वो सख्त हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके बाद हम सुधारना चाहें तो सुधरेगा? बोलो जी, एक ही इलाज है, काट दो उसको, खत्म किस्सा। यही हमारे नौजवानों का हाल है, यही हमारे नौजवानों का हाल है। बड़े होने के बाद वो सुधरेंगे नहीं।
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बचपन में पहले मरहले में माँ बाप सुधारे, कौन? वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खास तौर से माँ है नहीं, एक तादाद औरतों की, एक तादाद औरतों की है। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए सुनो, तुम्हारी जबान में बड़ी तासीर है। अल्लाह अकबर, तुम्हारी जबान में बड़ी तासीर है। आप हंसोगे तुम मैं जो बोलने जा रहा हूं। फिरौन भी औरत की बात मान लिया है। कौन? कौन? फिरौन भी औरत की बात मान लिया है। इतनी औरत की जबान में अल्लाह ने तासीर दी है। इस बच्चे को मत मारो, ये बच्चे को हम अपना बेटा बना लेंगे। फिरौन भी छोड़ दिया, नहीं मारा। माना नहीं माना? औरत अगर कुछ बोलती है, अल्लाह ने बड़ी तासीर उसकी जबान में दी है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करो इंशाअल्लाह ताला। और आप, हमारे एक आलिम बोले थे, उन्हीं का लफ्ज दोहरा देता हूं, आज डॉक्टर औरतों की कमी नहीं है, इंजीनियर औरतों की कमी नहीं है, आज बड़ी बड़ी औरतों की कमी नहीं है। कमी है मिसाली बीवी की। किसकी? सॉरी, मिसाली मां की। किसकी कमी है? जोर से बोलो। और वफादार बीवी, वफादार बीवी और मिसाली मां की कमी है। ऐसे बनने की कोशिश करो मेरी बहनों, अल्लाह के लिए। घर के अंदर माहौल बनाओ, बच्चे को वहां से निकालो इंशाअल्लाह ताला। पहले सुधरने का मौका कहां है? घर का माहौल सही करो। बाप क्या बोलता मालूम? जाबा नमाज पढ़ लेगा जा। इन्हें नहीं जाता नमाज को, इन्हें बैठ कर टीवी देखते रहता है, इन्हें बैठकर टीवी देखता है। बच्चा नमाजी बन जाए, इन्हें नहीं जाना चाहता, वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद भी नमाज को जाओ, साथ में लेकर जाओ, इंशाअल्लाह बच्चा सुधरेगा। ये पहला मरहला इंशाअल्लाह जी। सेकंड मरहला, जिस स्कूल में पढ़ने डाल रहे हो ना, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा है, अगर मैं यहां ऑन कर दूंगा तो आप मुझे मार देंगे। हमारी बच्चियां स्कार्फ पहनकर खाने से पहले क्या पढ़ रही हैं? हमारी बच्चियां, मुसलमान बच्चियां, स्कार्फ पहनकर खाने से पहले क्या भजन उन्हें सिखाया जा रहा है? कौन सी स्कूल में बच्ची पढ़ने जा रही है, बच्चा पढ़ने जा रहा है? गौर करो, यह दूसरा मरहला है। वहां हमारे बच्चे बनते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसा उस्ताद मिलेगा वैसा हमारा बच्चा बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये इसका इंतखाब। तीसरी और अहम चीज है, अपने बच्चे को अल्लाह के घर से जोड़ के रखो मेरे भाई। आपको बोलता हूं, खुशी खुशी इंशाअल्लाह मेरा बयान खत्म करूंगा। मेरे एक दोस्त, बड़े अच्छे डॉक्टर, अमेरिका में भी गए, वापस आ गए। वो दर्स में बैठते थे, मौलाना अब्दुल मतीन मैमन जूनागढ़ी रहमहुल्लाह के। किसके? किसके? अब्दुल मतीन मैमन जूनागढ़ी। कौन है ये जी? पूरे जवाब यहां से जारी पीछे। कौन है ये? 30 पर 5 साल, सुभान अल्लाह। मरकजी मस्जिद बेंगलोर, सबसे बड़ी मस्जिद आले हदीसों की, 30 पर 5 साल ये रहे। सुभान अल्लाह। कितने साल? सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर साहब, उनके अब्बा का दुकान मस्जिद के बाजू था। रोज कॉलेज को जाते, ईशा का दर्स कभी मिस नहीं करते डॉक्टर साहब, बचपन से। 2 मरतबा मौलाना अब्दुल मतीन साहब की जबानी पूरी सही बुखारी सुनी है उन्होंने। कितनी? सुभान अल्लाह, पूरी सही बुखारी। कि आज वो डॉक्टर साहब का ये कहना है, जिंदगी में कोई भी फैसला मैं लेता हूं, सबसे पहले मौलाना अब्दुल मतीन साहब सामने आते हैं और एक हदीस दिमाग में आती है। उनकी एक बात बोल देता हूं, पुराने डॉक्टर हैं, उम्र भी ज्यादा है, जब MBBS करके निकले, काम की तलाश में गए, आप मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिसे समझ में आएगा वो मुस्कुराएगा। काम की तलाश, बेंगलुरु की एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, सेंट जॉन्स, क्या नाम, वहां काम मिला इनको। इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट्स देखे गए, सब अच्छे हैं। इन्होंने दाढ़ी छोड़ी थी। तो आखिर में फादर ने सवाल किया, जो उसका बड़ा है, फादर, तूने दाढ़ी क्यों छोड़ी है? सुभान अल्लाह। उनका जवाब क्या था मालूम? इसलिए कि मैं ईसा से मोहब्बत करता हूं। क्या जवाब? जोर से बोलो। और मैंने बचपन से ये देखा है, ईसा की जितनी भी फोटो मैंने देखी है तुम्हारे पास, दाढ़ी के साथ मैंने देखा है, इसलिए मैंने दाढ़ी छोड़ी है। फादर बेचारा पूरा सफन सफा था, वो हैरान परेशान, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इतना बोला, आप सिलेक्टेड हैं, कल से ड्यूटी को आ जाइए।
جی سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے نوجوان ساتھیوں کی اللہ اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، آنے والے دنوں میں، فتنوں کے دنوں میں اللہ دین اور دنیا میں میرے بچوں کو اللہ ماہر بنائے، اللہ ان کو نیک بنائے، اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ دین پہ چلنے والا بنائے. اللہ بچیوں کو بھی خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کا نام، والدین کا نام روشن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، فجر کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.